So, Assalamu alaikum. Before yesterday, we have studied about the radiographs. So, let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So, we have studied the indications for removal teeth, like if it's caries, pulp necrosis, periodontally compromised, cracked, impacted, supernumerary teeth, or teeth associated with lesion or radiotherapy, or either it is financial issues. Contraindication we have also studied, in which we have local and systematic. In local, we have studied some, like we have studied about the maxillary third molar. If there is any pericoronitis present, so we will not removed it. We have also studied such that the teeth in a tumor we will not remove due to metastasis, that is locally. Okay, then we have also studied about acute dentoalveolar abscess. We have also studied we will not remove. Then we have also studied about systematic, in which we have diabetes, blood disorders, uh, bone related diseases, in which we don't remove the tooth. Now we have also studied about the access to the tooth, in which we have studied limited mouth opening patient, if limited what to do, and what is normal, so what to do. Mobility of the tooth we have studied, in which we have studied hypercementosis and ankylosed tooth. Okay, then crown of the condition we have checked, if it is basically it can be how the tooth is elevated as possible as with the forceps, or it is far apically, means basically, in which we studied if the restoration is large, so what to do with the crown. Then we have studied with a large amount of calculus around the tooth present that has to be extracted, the tooth that has been extracted, so how to safely to save the adjacent structures. Then you have radiographic examination. In radiograph we have studied that if there is impacted tooth, for impaction we see the density of the bone. Actually, we see any pathology, if there is any pathology, so we see. Then relationship to vital structures, we have studied maxillary sinus, interdental alveolar canal, mental foramen, how we have to safely extract it if the tooth is near these structures. Root configuration, in which we have studied about the number of roots, the curvature of the roots, then we number how long the roots are, the length of the roots, then that how to treat such roots. Then condition of the surrounding bone was studied. Actually, if it's a dense bone, what how it will look in radiograph. It is, if it is less dense, so how it will look, and if it is more dense, how it will look actually. If it is a pathology, how it will look also. Now coming towards patient and surgeon preparation, so let's start. Bismillahirrahmanirrahim, the new topic. So basically क्या होता है, जब सर्जन क्या करता है कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता है कि पेशेंट को कोई इंजरी या कोई भी ट्रांसमिट डिजीज़ ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरी फेमस प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करते हैं, आई वेयर्स यूज़ करते हैं, आई वेयर विथ साइड शील्ड्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग गाउन्स पहनते हैं बेसिकली, ठीक है ना। पेशेंट सर्जिकल कैप भी सॉरी डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट दोनों सर्जिकल कैप भी पहनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास हम एक स्टेरिल ड्रैप भी लगते हैं पेशेंट के चेस्ट के ऊपर, कोई एक कॉन्टेमिनेशन ना हो जाए। फिर हम क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आप एसेप्टिक माउथ रिंस यूज़ करें, क्लोराइज़िडीन, अगर कोई भी वो हो बैक्टीरिया तो उसके नंबर रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट को कहते हैं कि बेसिकली हम उसके पेशेंट में हम क्या कर लेते हैं कि गॉज मुंह में पोस्टीरियरली एक 4x4 गॉज लगा लेते हैं कि हम जब टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो कई प्रेशर से वो swallow ना कर ले या एस्पिरेट ना कर ले, तो एक बैरियर है, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। लेकिन हमने बहुत पोस्टीरियरली नहीं लगाना कि ये पेशेंट का जो गैग रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट ना हो जाए। अच्छा, जो चेयर पोजीशन फॉर एक्सट्रैक्शन है, उसमें सबसे बेस्ट पोजीशन ये होती है कि जहाँ पर पेशेंट और सर्जन दोनों कंफर्टेबल हों, ठीक है ना, जिस पर सर्जन मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल फोर्स लगा डिलीवर कर सके पेशेंट के टूथ पर थ्रू द एलिवेटर्स एंड फोर्सेप्ट। जो करेक्ट पोजीशन है हम उस पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पेशेंट जो डॉक्टर का आर्म है वो उसकी बॉडी के करीब है और जो रेस्ट है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है।
क्वीन ऑफ ली बेसिकली स्ट्रेट है कि वो फोर्सेस थ्रू द आर्म्स और शोल्डर लगाए, ना कि वो अपने फिंगर्स या हैंड्स का यूज़ करे। ठीक, बेसिकली जो डिलीवर्ड फोर्सेस होती है ना, वो कभी कभार जो कंट्रोल होती हैं वो लॉस हो जाती है इन अ सडन, मतलब वो बेसिकली क्या कर इन द फेस ऑफ सडन लॉस ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम, या तो रूट से या कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है। सो बेसिकली स्टैंडिंग सर्जन के लिए हमने सबसे पहले वो डिसाइड करना होगा कि पोजीशन। तो बेसिकली राइट हैंडेड के लिए भी होता है और लेफ्ट हैंडेड के लिए भी होता है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो डेंटिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि वो कभी कभार जो डेंटल यूनिट है उसको बहुत हाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो शोल्डर्स उसकी वजह से राइज हो जाते हैं। तो उनके लिए जो करेक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स टूथ पे लगाना है वो बड़ा टफ होता है डिलीवर करना। ठीक है ना, क्योंकि इतना आपने यूनिट को हाई कर लिया, तो ये नहीं करना। दूसरा ये होता है कि कभी कभार, और दूसरी गलती क्या होती है कि आपने डेंटिस्ट कभी कभार पूरा का पूरा पेशेंट के ऊपर आ जाता है, तो आपने पेशेंट के मुंह पर पूरी नहीं आना। ठीक है ना, कि आप उसके माउथ के पेशेंट के माउथ की। दूसरा, आपने लाइटनिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करना। कभी कभार हम क्या, इट इज़ वेरी हार्ड कि वो पेशेंट की हम लाइट के सामने आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होती फिर। अच्छा, सबसे पहले हम मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि चेयर को हमने टैप बैकवर्ड सो दैट द मैक्सिलरी ओक्लूजल प्लेन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द फ्लोर। ठीक है, यू कैन सी हियर द पिक्चर हाउ द पेशेंट इज पोजीशन फॉर मैक्सिलरी। इसने चेयर को इसमें चेयर बिल्कुल बैकवर्ड की तरफ टिल्ट है, तो जो ओक्लूजर जो मैक्सिलरी ओक्लूजर प्लेन है हमारे पास जो है ना, वो 60 डिग्री पर है टू द फ्लोर, 60 डिग्री टू द फ्लोर। तो आपने क्या करना है, हाइट ऑफ चेयर को शुड बी इंश्योर दैट लेवल ऑफ पेशेंट माउथ के साथ हो। तो जो हाइट होती है ना चेयर की, वो आपने इस तरह करनी है कि पेशेंट का माउथ जो हो वो स्लाइडली बिलो द सर्जन एल्बो हो। ठीक है, कि पेशेंट का माउथ बिलो एल्बो आना चाहिए, देख रहा हूँ। ठीक है, आपने जो सर्जन होता है ना, उसके बिलो, उसके एल्बो की बिलो पेशेंट का माउथ आना चाहिए। अगर आप पेशेंट के लेग को राइज करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है फॉर द पेशेंट के लिए। ठीक है, जो हाइट ऑफ चेयर है वो वही बात है कि आपने स्लाइडली बिलो द ऑपरेटर एल्बो रखना होता है। ऑपरेशन के बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ मैक्सिलरी राइट कॉन्ट्रैक्ट जब हो, तो पेशेंट का जो हेड है ना, वो आपने सब्सटेंशनली टुवर्ड्स द ऑपरेटर रखना है। मतलब अगर राइट साइड को आप ट्रीट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर रहे हो कि पेशेंट का जो हेड है उसको सर्जन की तरफ होना चाहिए, कि उसको प्रॉपरली एक्सेस और विजुलाइजेशन मिल सके। ठीक है, मैक्सिलरी जो इंटीरियर आर्च होता है उसमें लुकिंग स्ट्रेट हेड वो तो हो जाता है। फिर आपने पोजीशन ऑफ मैक्सिलरी लेफ़्ट साइड को उसी तरह रखना है, लेकिन आपने पेशेंट का जो हेड है वो स्लाइडली टुवर्ड्स द ऑपरेटर फिर आप यहाँ रखना है, स्लाइडली। राइट में तो आपने प्रॉपर टुवर्ड्स सब्सटेशनली टुवर्ड्स रखना था ना, यहाँ स्लाइडली रखना है। मैंडिबल में क्या था, द पेशेंट शुड बी पोजिशन इन अ मोर अपराइट पोजीशन। वहाँ पर क्या था कि हमने ओक्लूजल प्लेन को 60 पर लाना था, यहाँ पर क्या है, मोर अपराइट पोजीशन and the mouth is open widely, तो an occlusal plane is parallel to the floor। वहाँ occlusal plane 60 पर होना चाहिए था maxillary के लिए। Properly position bite block should be used to stabilize the maxillary। See the picture of extraction of anterior maxillary. The patient looks ahead of the extraction of maxillary left side. The patient is slightly towards, okay, एंड दैट वॉज द राइट क्वाड्रेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दैट वॉज मैंडिबल। तो मैंडिबल को जब भी आपने क्या करना होता है, बाइट ब्लॉक के थ्रू स्टेबिलाईज करना होता है। आपने मैंडिबल में व्हेन एक्सट्रैक्शन फॉरसेप्स आर यूज। ठीक है, तो आप क्या करते हो, मैंडिबल को स्टेबलाइज करने के लिए बाइट ब्लॉक देते हो, स्टेबलाइज हो जाए और फॉरसेप्स को यूज़ करते हो। बेसिकली जब सर्जन बीम सपोर्ट कर रहा है तो बाइट ब्लॉक विल आल्सो हैव सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से लेस स्ट्रेसेस होगी टू द जॉ। और इसमें क्या होगा, पेशेंट के जो मसल्स होंगे वो बहुत रिलैक्स होते हैं जब आप उसको बाइट ब्लॉक के थ्रू स्टेबलाइज कर। आपने स्मॉल यूज़ करने, लार्ज नहीं यूज़ करने, वरना स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाएगी TMJ के जॉइंट्स एंड पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। पीडियाट्रिक बाइट ब्लॉक्स जो है वो बेस्ट होते, इवन आप अडल्ट्स में वो दे सकते। अच्छा, अब मैंडिबल की जब आप राइट पोस्टीरियर को ट्रीट कर रहे हो तो पेशेंट का जो हेड होता है वो आपने एक्यूट टुवर्ड्स द सर्जन रखना होता है, मतलब एक्यूटली टुवर्ड्स द सर्जन करना होता है कि प्रॉपरली जो एक्सेस कर सके सर्जन। ठीक है, मेंटेन करना है प्रॉपर आर्म एंड हैंड पोजीशन। ठीक है, जब आप रिमूव कर रहे हो इंटीरियर में तो सर्जन को क्या चाहिए कि तो फिर उसे साइड ऑफ द पेशेंट होना पड़ेगा। यू कैन सी हियर एक्सट्रैक्शन है मैंडिबुलर इंटीरियर के, द सर्जन इज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ पेशेंट हु लुक्स जस्ट स्ट्रेट अहेड। ठीक है, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर राइट पोस्टीरियर, द पेशेंट इज टर्न टुवर्ड्स द सर्जन।
जब आप लेफ़्ट को ऑपरेट कर रहे हो तो आपने क्या करना है, सर्जन शुड मूव टूवर्ड्स द साइड ऑफ पेशेंट, लेकिन पेशेंट का हेड शुड नॉट टर्न एक्यूटली टूवर्ड्स द सर्जन. Okay, so it allows the left hand of the surgeon to support the mandibular, which is better. Forceps को आपने अंडर हैंड ग्रिप में लेना होता है, एंड द सर्जन शुड व्यू द फूल विद अपसाइड डाउन पर्सपेक्टिव. ओके, फिर आपने लेफ्ट हैंड ऑफ द सर्जन को अराउंड द पेशेंट हेड और सपोर्ट करना है मैंडिबल, वही बात है. ठीक है, बेसिकली all these pictures are showing that how it is actually positioned when you are doing mandible. Okay, so the usual behind the patient approach is also seen, which I have told you. And note the surgeon right arm is held closely to their body, which I have told you, increasing कि वो आर्म से फोर्स जो है ना कि फिंगर्स, अगर वो स्टैंडिंग नहीं सिटिंग पोजीशन में करना चाहता है तो मैक्सिलरी में फिर उसने क्या करना होता है, सेमी रिक्लाइन पोजीशन रखना होता है पेशेंट का. सेमी रिक्लाइन होगा वही पोजीशन सिमिलरली यूज्ड व्हेन सर्जन जो है वो स्टैंडिंग हो. पेशेंट का इज़ नॉट रिक्लाइन एज मच, उसको नहीं करना, वरना ओक्लूजर प्लेन इज़ नॉट परपेंडिकुलर, वरना ओक्लूजर प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा टू द फ्लोर एज इट व्हेन द सर्जन वॉज स्टैंडिंग. जो सर्जन जब स्टैंडिंग था उस पर 60 था, इस पर क्या होगा, फिर वो परपेंडिकुलर भी नहीं होगा. तो पेशेंट शुड बी लोअर एज फार एज द लेवल ऑफ पेशेंट. तो क्या करना होता है कि पेशेंट को आपने उतना लो करना है एज फार के लेवल ऑफ पेशेंट इट शुड बी नियरली पॉसिबल कि वो सर्जन के एल्बो पर आ जाए, कि उस उतना लाना है. आपने हमेशा वही पोजीशन चूज़ करनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ये बहुत याद रखना ज़रूरी है. आर्म हैंड पोजीशन फॉर्म में एक्सिलरी एक्सट्रैक्शंस इंटिया पोस्टीरियर वही आपने रखना है सेम जो आपने स्टैंडिंग पर करना था. और ठीक है, वही बात है कि आपने यहाँ अपराइट एक्सट्रैक्शन करनी होती है मैंडिबल में एज़ कम्पेयर टू मैक्सिलरी. ठीक है, इंग्लिश स्टाइल फॉरसेप्स यूज़ करते हैं तो आपने पेशेंट के बिहाइंड रहना होता है. ठीक है, ये नोट कर लें. एंड द असिस्टेंट हैंड एंड आर्म पोजीशन सिमिलर टू दिस व्हेन द सर्जन इज इन स्टैंडिंग पोजीशन. इंग्लिश स्टाइल फॉरसेप्स है.